नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। कल रात अमृतसर पंडोरी वड़ैच गांव में साबका सरपंच के बेटों ने सुरजन सिंह और करतार सिंह के पारिवारिक मेंबरों पर किया जानलेवा हमला। लोपो के थाना प्रभारी के खिलाफ दलितों के उत्पीड़न के आरोप में केस दर्ज करने का डॉक्टर राजकुमार वेरका ने दिया आदेश। अमृतसर डीसी ऑफिस के सामने अलग अलग मजदूर यूनियन की ओर से की गई हड़ताल आज तीसरे दिन में हुई शामिल। जालंधर के चंदन नगर में 45 करोड़ रुपए की लागत के ओवरब्रिज प्रोजेक्ट का किया गया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। कल रात अमृतसर पंडोरी वड़ैच में आदिका की पत्नी में साबका सरपंच के बेटों द्वारा सुरजन सिंह और करतार सिंह पर जानलेवा हमला करने की बात सामने आई। ये हमला उन्होंने कल रात 8:30 बजे के करीब किया। हमलावर साथ में तलवारें और कई तरह के हथियार लेकर आए थे। इस दौरान उन्होंने औरतों सहित पूरे परिवार पर भी जानलेवा हमला किया। सुरजन सिंह ने इस हमले के दोषियों के खिलाफ पुलिस द्वारा केस दर्ज करने और अपने पूरे परिवार को इंसाफ देने की मांग की है। मेरा नाम सुरजन सिंह है जी, पंडोरी वड़ैच जी। मसला कोई नहीं हालिया, मैं बाहरों आया गाली घरों आन के पै गया। मैं घरों आया बाहरों, ਮੈਨੂੰ ਧੋਏ ਕੁੱਟਣ ਡੈ ਪਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪਟਾ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 4-5 ਜਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਬਿੱਟੂ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਭੱਲੂ ਆ ਤੇ 2 ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਭੱਲੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। 5 ਜਣੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆਣ ਕੇ 5-6 ਜਣੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਤੋੜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਚੈਨੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੜਾ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਵੈਸੇ ਉਧਰ ਖੂਹ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਛਡਾ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੰਦ ਤੋੜਦੇ ਉਹਦੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤਰਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਡੈ ਪਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕੋਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਦਾਤ ਦੂਤਰ ਮਾਰੇ, ਦੰਦ तोड़ा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार वेरका के समक्ष आज अमृतसर देहाती के एसएसपी जसदीप सिंह पेश हुए। डॉक्टर वेरका ने थाना लोपोके के प्रभारी द्वारा एक दलित युवक को बिना किसी आरोप के थाने में 3 दिन तक टॉर्चर करने के मामले में एसएसपी को थाना प्रभारी हरमिंदर सिंह के खिलाफ पर्चा दर्ज करने के आदेश दिए। मसला सर ये है कि 8 तरीक ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ एसएचओ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਭੀਲੋਵਾਲ ਹਰੇਸ਼ਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ एसएचओ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਲਾਗੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਸ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਂਦਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ ਵੈਸੇ? ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਗਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਉਸਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ एसएसपी रूरल ਨੂੰ ਮੈਂ तलब ਕੀਤਾ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ कि ये FIR फौरी तौर पर दर्ज होनी चाहिए। आज अमृतसर डीसी ऑफिस के सामने किरती किसान जूनियर और पेंडू मजदूरी यूनियन की ओर से की गई हड़ताल आज तीसरे दिन में शामिल हो गई है। इस धरने को संबोधित करते हुए यूनियन के सीनियर प्रधान धर्मेंद्र अजनाला और किरती किसान यूनियन के प्रधान दत्तार सिंह ने बताया कि हमारा संघर्ष पंचायती जमीनों में दलित मजदूरों के लिए राखवांकरण, तीसरा हिस्सा कम बोली लेने, फर्जी हुई बोलियां रद्द करने और पंचायत
पंचायती जमीनों पर फर्जी आदमी खड़े करने वाले दोषियों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवाने और हमारे मजदूर भाइयों पर हुए पर्चे रद्द करने के संबंध में है। इन्हीं मांगों को लेकर ये संघर्ष किया गया है। लेकिन पंजाब सरकार किरती किसान मजदूरों के साथ गैरों जैसा व्यवहार कर रही है और उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारी बातों पर ध्यान न दिया तो हम संघर्ष को और तेज करेंगे। सरकार इस मामले 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਲਤਾਂ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਫੋਰਹੈਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵਾਹੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 41 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ है, इस पे सरकार करना नहीं कर रही। आज गुरदासपुर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से भारत सरकार की सहायता प्राप्त संस्था अलिम्को की सहायता से जरूरतमंद अपंग व्यक्तियों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, सुनने वाली मशीनें और डुप्लीकेट अंग बनाने के लिए सरकारी सरकारी कॉलेज में 3 दिन का कैंप आयोजन किया गया और जिसका उद्घाटन डॉक्टर अभिनव त्रिखा, डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर और हॉस्पिटल भलाई शाखा के चेयरपर्सन श्रीमती डॉक्टर भावना सौबी त्रिखा की ओर से किया गया। डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी वालों ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਲਿਮਕੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਕੈਂਪ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਐਲਿਮਕੋ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। इस कैंप के दौरान ये 3 दिन कैंप चलेगा और इस दे दौरान असी 238 ट्राईसाइकिल, 60 व्हीलचेयर, 174 क्रचर्स, 132 हेयरिंग एड्स और ब्रेल के संबंधी कुछ समान जो बेनीफिशरीज हैगे ने उन्हां दे विच डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरा नाम गुरजीत सिंह है, मैं पुटर पिंड तो आया, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर तो। मैं ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ITT ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। जालंधर के चंदन नगर, सौडल और आसपास के इलाके के लोगों की बहुत समय से मांग थी कि चंदन नगर के अंदर पुल बनाया जाए ताकि वहां के लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। लोगों की इसी मांग को पूरा कर पंजाब सरकार द्वारा 45 करोड़ की लागत से चंदन नगर ओवर ब्रिज प्रोजेक्ट पास कर इसका उद्घाटन कर दिया गया था, लेकिन रेलवे द्वारा मंजूरी न होने से प्रोजेक्ट लेट हो गया था, जिसे अब रेलवे की मंजूरी मिलने के बाद जालंधर के मेयर सुनील ज्योति, CPS के डी भंडारी, विधायक मनोरंजन कालिया, नगर निगम कमिश्नर MS सतवाज सहित जालंधर के मोहतवर लोगों ने आज इसका भूमि पूजन कर कार्य का श्री गणेश किया। इस मौके पर मेयर सुनील ज्योति ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को 1.5 साल में पूरा कर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। आज लोगों की जी बहुत पुरजोर एक मंग सी कि चंदन नगर अंडर ब्रिज की वो अज प्रभु कृपा नाल पूरी हो गई है और आज रेलवेज़ ने जो अपना काम है वो शुरू कर दिता है। लगभग 8.5 करोड़ की लागत के नाल रेलवे का जोड़ा पोर्शन है वो रेलवेज़ लाइना के अंडरों अपना तैयार करेगी और जोड़ा बाकी का भी स्लोप्स है ये जोड़ा अंडर ब्रिज है असी जनता को समर्पित करांगे और जालंधर की नुहार बदलने के एक होर इतिहासिक कदम जालंधर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने चुकिया। अज असी जोड़ा जालंधर शहर की बहुत बड़ी मंग सी भी चंदन नगर का अंडर ब्रिज ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵਾਸ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। लुधियाना के डुगरी इलाके का रहने वाला 20 साल का त्रिसैनिक एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी साइबर क्राइम रोकने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए इसकी मदद ले रहे हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ त्रिसैनिक की कंप्यूटर के प्रति लगन से
जहां त्रिसैनिक पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को मदद करने में सफल हो रहा है, वहीं भविष्य में होने वाले साइबर क्राइम से बचने के लिए भी ट्रेनिंग दे रहा है। वह पंजाब सहित कई राज्यों और विदेशों में भी ट्रेनिंग देकर आ चुका है। इसमें कई मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम भी शामिल है। त्रिसैनिक ने बताया कि वह भारत को क्राइम फ्री देश के रूप में देखना चाहते हैं, जिसके तहत उसने पिछले साल क्राइम पर एक पुस्तक भी लिखी है और लेखक त्रिसैनिक की वर्ष 2015 तक 5 पुस्तकें मार्केट में आएंगी और वह अगले महीने यूएसए के साइबर क्राइम टीम को भी ट्रेनिंग देने जा रहा है और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा त्रिसैनिक को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित भी किया गया। हैकिंग टॉक विद ऋषनीत रोड़ा, एक्चुअली ये बुक हैकिंग के बारे में ही बात कर रही है, मेरे ज़रिए बात कर रही है, जो मेरे को नॉलेज है उसमें मैंने इसमें डाली है। तो ये बुक मेरे ज़रिए लोगों से बात करेगी, हैकिंग की बात करेगी। तो हैकिंग हमेशा ही क्राइम रहा है, लेकिन एथिक्स डिपेंड करते हैं, हमारे एथिक्स के हैं हैक करने के लिए, हम एथिकली कर रहे हैं या अनएथिकली कर रहे हैं। अगर एथिकली कर रहे हैं दैट हम किसी की परमिशन के साथ उसे हैक करेंगे ताकि हम उसे लूप होल्स फाइंड कर सकें किसी नेटवर्क के या वेबसाइट के। तो जो लूप होल्स हैं तो हम उसे पैच कर सकें, उसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी कहा जाता है। ट्रेनिंग मैं IPS ऑफिसर्स को गुजरात में दे चुका हूँ, साइबर क्राइम यूनिट उनका क्राइम ब्रांच गुजरात में। फिर मैंने पंजाब पुलिस के DSPs को ट्रेनिंग दी है। तो पर अब मैं IT एडवाइज़र हूँ, ऑफिशियल IT एडवाइज़र तो पंजाब पुलिस अकेडमी। तो DSPs को ट्रेनिंग दी है, लुधियाना पुलिस को ट्रेनिंग दी है। सेकंड मैंने CBI को भी ट्रेनिंग दी है। कितनी छोटी उम्र में आपने लिखनी शुरू की थी? ये 1 साल पहले लिखनी शुरू की थी और स्पेशली ये 15 अगस्त के आसपास ये बुक निकाली गई है। क्या रही है? मैं US में जा रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग देने के लिए कॉलेज। तो किस तरह आया है? दिमाग में एक्चुअली कुछ अलग करने का था, मतलब कि तब से ही। तो जब मैं 12-15 साल का था तब से ये कर जी। ये जो आज आपने जो इनकी बुक पढ़ी है हैकिंग, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की ये बुक लगी आपको और उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब एक नई बुक लॉन्च हुई है हम लोगों को, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपना करियर नया चूज़ कर सकें। और प्लस जैसे हम जैसे किसी की IDs हैक हो जाती है, पर्सनल अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, कोई बिज़नेस के रिगार्डिंग किसी को प्रॉब्लम आ जाती है कि पूरा कंप्यूटर का डाटा सिक्योर नहीं रहता, तो एटलीस्ट ये बुक पढ़ के लोग सिक्योर कर सकते हैं अपने डाटा को, अपनी IDs पर्सनल जो उन्होंने डाटा रखा होता है। तो मतलब आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा? बहुत बेनिफिट होगा। मैं तो कहती हूँ इससे स्टूडेंट्स को एक करियर चूज़ करने का नया अपॉर्चुनिटी मिलती है। लुधियाना में आज सुबह दवाइयों के एक बड़े व्यापारी ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी और मृतक की पहचान कोचर मार्केट निवासी राकेश दाता के रूप में हुई है। राकेश की हिमाचल के बांदी इलाके में दवाइयों की एक बड़ी फैक्ट्री है जिसका विवाद चल रहा है। इसी कारण वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहता था। आज जब राकेश सुबह सैर करके अपने घर वापस आया तो उसने बाथरूम में जाकर अपनी रिवॉल्वर से गोली मारकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। उधर पुलिस जांच पड़ताल में लगी है और इस मामले की काल डिटेल भी निकाली जा रही है। दत्त नाम के आदमी है, वो इन्होंने अपने पिस्टल से अपने घर में ही सुसाइड कर ली है। मौके पर हमें पता चलने पर मौके पर आए हैं हम और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और मुढली जांच से यही पता चला है, वो उनकी मिसेज का भी यही कहना है कि वो सुबह कार पर बाहर गए थे सैर के लिए और आते ही अपने रूम में चले गए, थोड़ी देर बाद ही आए थे। और जब उन्होंने बाद में देखा बाथरूम जो अटैच बाथरूम है उसमें उन्होंने गोली मारकर अपनी हत्या कर ली अपने आप और सुसाइड कर ली। मेडिकल की कोई फैक्ट्री है बद्दी में हिमाचल में, वहाँ को क्राइसिस चल रहा था, उसी वजह से कुछ परेशान रहते थे और डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड किया। बाकी देख रहे हैं जी, बाकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं फिलहाल जो भी बनती कार्रवाई की जाए। पहली नज़र में तो यही है, सुसाइड की है उन्होंने, वो तो क्लियर कट है क्योंकि दरवाज़ा अंदर से लॉक था, उन्होंने चाबी से खोला है और ये तो सुसाइड है, ये तो क्लियर है। सैर कार पर गए थे और कार पर ही जाते थे, वहाँ कहीं रोक के फिर सैर करते थे। आज जल्दी आ गए और ये बताते हैं शायद जब आए तो अपसेट थे, इनको फ़ोन वगैरह को आ रहे थे। ये हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जी, पारिवारिक थी या क्या थे वो। अभी तक तो फैक्ट्री की प्रॉब्लम पड़ी है, वो फैक्ट्री जो इनकी थोड़ी क्राइसिस में चल रही थी और वो जो इनके एम्प्लॉई थे वे पे वगैरह मांग रहे थे, वो थोड़ा सा डाउन चल रही थी, वो थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है। मोबाइल की भी जांच की जाएगी? सारा कर रहे हैं, सारा टेक्निकल।
कर्मचारी भविष्य निधि योजना संगठन में जिनका खाता है उनके लिए मोदी सरकार खुशखबरी लेकर आई है। संगठन ने फैसला किया है कि अक्टूबर महीने में सभी अंशधारकों को कम से कम 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी अधिसूचना आज गुरुवार को जारी की और इसके तहत आईपीएफ के लिए अधिकतम वेतन सीमा भी बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है और ये फैसला 1 सितंबर से लागू हो गई। जिन्हें अमृतसर के तहसील अजनाला के छोटे से गांव भल्ला के रहने वाले लवदीप सिंह हरजात ने भारत के लिए इसी महीने मॉस्को में हुई जूनियर वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव, पंजाब और पूरे भारत का नाम रोशन किया। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार वेरका ने लवदीप को उसकी कामयाबी पर सम्मानित किया और उन्होंने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को खत लिखकर अपील की है कि वह ऐसे ही होनहार खिलाड़ी को किसी अच्छे सरकारी पद पर नियुक्त किया जाए। देश में कोयले की कमी का असर साफ दिखने लगा है और बिजली विभागों में कोयले की कमी की वजह से काम बंद होने लगा है। बुधवार को कई औद्योगिक इकाइयों ने कोयले की कमी भुगतान में देरी और तकनीकी कारणों से अपने उत्पादन बंद कर दिए हैं और आशंका जताई जा रही है कि बिजली की कमी उत्तर भारत तक पहुंच सकती है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कल रात अमृतसर पंडोरी वड़ैच गांव में साबका सरपंच के बेटों ने सुरजन सिंह और करतार सिंह के पारिवारिक मेंबरों पर किया जानलेवा हमला। लोपो के थाना प्रभारी के खिलाफ दलितों के उत्पीड़न के आरोप में केस दर्ज करने का डॉक्टर राजकुमार वेरका ने दिया आदेश। अमृतसर डीसी ऑफिस के सामने अलग अलग मजदूर यूनियन की ओर से की गई हड़ताल आज तीसरे दिन में हुई शामिल। जालंधर के चंदन नगर में 45 करोड़ रुपए की लागत के ओवरब्रिज प्रोजेक्ट का किया गया उद्घाटन। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।